Hey friends, welcome back to the new lecture session on meiosis. Let's begin with the definition. So what is meiosis? Let's discuss that. Meiosis समझने के लिए हम एक सेल की मदद लेंगे with the help of diagram. So हम समझेंगे जैसे हमने माइटोसिस समझा था लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में अपलोडेड है ऑलरेडी. Mitosis part 1 and part 2. So today we are discussing meiosis. So if there is a parent cell, suppose this is a parent cell, it gives rise to 4 daughter cells. So first one cell will divide into 2 daughter cells. Then this 2 cells will be divided into 4 daughter cells. Likewise. Okay. So let's understand why basically the meiosis is taking place. Why meiosis is so important. Meiosis इतना ज़्यादा important क्यों है, इस बारे में डिस्कस करते हैं. Meiosis generally sexually reproducing organism में important होता है, gamete formation के लिए important होता है. Okay? Gamete formation के लिए important होता है. So meiosis is important for formation of gamete. Okay, so first point to explain meiosis is 4 daughter cells are produced. Number 1. Number 2, 2 stages are there in meiosis. So meiosis 1 and meiosis 2. Why I have written like this on the particular location? Because when this mother cell give rise to 2 daughter cells, this step इसे हम meiosis 1 कहते हैं. When further 2 daughter cells are giving rise to further 4 daughter cells, that step is meiosis 2. Okay, so 4 daughter cells are produced, 2 steps are involved. Third thing is, it is also called as reductional division. Also called as reductional division. Okay, why this is called as a reductional division? Because the nuclear content of the mother cell will transfer to the daughter cells and it will be divided. Okay, the content will be divided. अगर 100% है 50-50% दिया गया. Okay, तो हम साइंटिफिकली इसे डिनोट करते हैं. सपोज द मदर सेल इज 2n. ओके, इट विल डबल इट्स क्रोमोसोम. हमें पता है सेल साइकिल प्रोसेस में जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो डबल हो जाती है इंटरफेज में. ओके, देन वो दिया जाता है डॉटर सेल्स में. सपोज हम बोलेंगे 1n लाइक दैट nn. देन फर्दर वही सेल्स उसी कंटेंट के साथ फर्दर डॉटर सेल्स बनाती है. ठीक है. ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है ये डिस्कस करते हैं. क्यों पढ़ेंगे हम मियोसिस, है ना. माइटोसिस तो हमने पढ़ लिया. माइटोसिस में हमने देखा सिंपली सेल डिवीजन होता है. तो मियोसिस में इतना इम्पोर्टेंट क्या है और इतना लेंदी भी है. ओके, सो मियोसिस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स का शफलिंग होता है, मिक्सिंग होता है. ओके, दैट्स वाई गैमेट फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, गैमेट में पेरेंटल क्रोमोसोम्स, जैसे कि मैं आपको डायग्राम की मदद से यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो आप लोगों ने मे बी 8-9 स्टैंडर्ड में ही पढ़ रखी है ना. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर इज मदर, सो द फीमेल साइन, the symbol for female to denote female in science is this sign, and this is for suppose male. So female, we always say this is an egg. Egg is produced by a female and a sperm is produced by a male in sexually reproducing organisms, animals or even plants. Okay, so this is 2n. Okay, this is a gamete, so this cannot be 2n. द अर्लियर सेल, जो पहले सेल ने इस गैमेट को बनाया, मदर सेल जो थी वो 2n थी. अब ये n है, ये n है.
तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज नॉट 2n, व्हाई द अगर गैमेट्स 2n हुए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ क्या फर्क पड़ेगा। जब ये फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उस टाइम पे ये अगर आपका न्यूक्लियर कंटेंट गैमेट का मतलब स्पर्म सेल और एग का 2nn डबल है, मींस डिप्लॉयड सेल है, उस कंडीशन में जब ये मिक्सिंग होता है तो द जाइगोट फॉर्मेशन होगा ना। सो जाइगोट हैज टू बी 4n। जाइगोट 4n होना मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ प्लीज रिकॉल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। So there are 46 chromosomes found in a diploid cell of human being. Okay. So in gametes we say that 23, 23, 22 plus something, like something means XX for female and XY for male. 22 plus autosomes and sex chromosomes. These are very basic concepts, हमने बचपन में पढ़े हैं। जिनको नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी, आप प्लीज कमेंट में रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको इस टॉपिक पे दूसरा लेक्चर बना के दे दूंगी। ओके, सो जाइगोट फॉर्मेशन है यहाँ पे 4n, और ये ऐसा कैसा ह्यूमन बीइंग बनेगा। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा एंड देन ये एम्ब्रियो एक ह्यूमन या फिर एक इन्फेंट या फिर एक चिल्ड्रन या किड, जो भी आप कह सकते हैं, इन्फेंट बोलते सब। सो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बता दो, यहाँ 23 क्रोमोसोम, यहाँ 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, ठीक है, यूजुअल कंडीशंस में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स 46 है। हम जब डिप्लॉयड सेल लेते हैं तो 46 आया, 46 आया, 46 का मिलके बनता है 92। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं बन सकता जहां 92 हमारे सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा 46 ही होना चाहिए। ओके, इसलिए गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि वो रिड्यूस कर देता है न्यूक्लियर कंटेंट को या क्रोमोसोम को। पर माइटोसिस ऐसा नहीं करता। माइटोसिस रिड्यूस नहीं करता। आप माइटोसिस के मदर सेल में जितना क्रोमोसोम है, माइटोसिस उतना ही अपने डॉटर सेल्स को उतना ही न्यूक्लियर कंटेंट या क्रोमोसोम दे देता है, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन में ये मदद होती है। अब आइए, अब हम नेचुरल कंडीशन देखते हैं जो होता आ रहा है नेचर में आज तक। सो वो ऐसा है, ये एग है, ये स्पर्म है, ओके। ये दोनों फ्यूज करेंगे क्योंकि इनके पास 23 है सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स मिला करके, ये दोनों फ्यूज करेंगे और ये बनाएंगे एक जाइगोट, ओके। और वो जाइगोट जो बनेगा फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और उसका क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल या एक पॉसिबिलिटी है बनने की। ओके, so this is the science behind everything, the fusion of gametes in human beings or in animals. तो ये रीजन, बहुत बड़ा रीजन है मियोसिस होने का, ठीक है। मियोसिस इसलिए होना चाहिए, ओके, नहीं तो डिस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, let's recall whatever we have discussed for meiosis. So, first point that we have discussed for meiosis, let's talk about it. We said that 4 daughter cells are produced, right? हमने कहा कि 4 daughter cells produce होती हैं, पहला point, very important. Number 2, 2 phases में divided है meiosis 1 और 2. नंबर 3 पॉइंट, रिडक्शनल टाइप ऑफ डिवीजन है ये। कैसा, किसका रिडक्शनल हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमोसोमल कंटेंट का रिडक्शन हो रहा है ना। ओके, डिप्लॉयड सेल जो है वो हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मियोसिस। और गैमेट फॉर्मेशन की बात आई मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंटली होना चाहिए। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये 4 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है मियोसिस के लिए, ठीक है।
तो आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब डिटेल में मियोसिस प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी मियोसिस से डर लगता है, मियोसिस बोरिंग लगता है, मियोसिस बहुत लेंदी लगता है, मैं आपको बता दूं मियोसिस बहुत इजी है। ठीक है, आपको माइटोसिस पता है ना? चलो डिस्कस करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस में आपको क्या पता है? आपने अगर मेरे लेक्चर सेशन देखे हैं, लेक्चर सेशन नहीं देखे हैं तो भी आप देख सकते हैं कभी भी टाइम निकाल के, या फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे देखने से पहले आप माइटोसिस देख लें फिर इसे देखें, क्योंकि वहां बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसे यूज किए हैं मैंने जो आपको समझ में आएगा। ये मियोसिस समझने के लिए आपको माइटोसिस भी मदद करेगा। ओके, माइटोसिस का एक शॉर्टकट रिवीजन बताती हूँ मैं, छोटा सा। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा? एक सेल रहता है, वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। कौन से फेजेस हमने पढ़े? बहुत इजी था, प्रोफेज पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा मेटाफेज, फिर हमने पढ़ा एनाफेज, फिर हमने लास्ट फेज जो है वो पढ़ा टीलोफेज। इन दी एंड सेल डिवीजन हो जाता है तो हमने कहा साइटोकाइनेसिस। अच्छा, प्रोफेज में जाने से पहले हमने एक टर्म यूज किया जिसको हमने कहा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ऐसे कहा हमने, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। अब मियोसिस के केस में ये माइटोसिस का सिनेरियो है। आपको माइटोसिस इजी लगता है क्योंकि आपको बस ये ध्यान में रखना पड़ता है कि देयर इज अ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओनली 4 phases are there, so it's easy. Only 4 phases are there in meiosis as well. meiosis में भी 4 ही phases हैं। थोड़ा सा लेंदी कैसे हो गया है मैं बताती हूँ। प्रोफेज जो है वो एक्सटेंड हो गया है, बाकी सब तो सेम है। प्रोफेज एक्सटेंड हो गया है और 2 बार डिवीजन हो रहा है मियोसिस में। माइटोसिस में एक ही बार हुआ था क्योंकि 2 ही डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने थे। यहाँ 2 बार हो रहा है क्योंकि 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने हैं ना, डबल काम करना पड़ेगा अगर डबल प्रोडक्शन चाहिए तो। ओके, सो मियोसिस के केस में प्रोफेज जो है वो डिफरेंट फेजेस में डिवाइड हो जाता है। ओके, हम देखेंगे कौन से फेजेस में। 5 सब स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है प्रोफेज, बाकी सब सेम रहता है, बस हमें इसके आगे पहले वाले फेज में 1 लगाना पड़ता है। मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 1 के लिए 2 आया तो 2 लगाएंगे सबके एंड में, मियोसिस 2 है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था 2 फेजेस में सेल डिवीजन होता है। ओके, चलिए बिना टेंशन के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और पहले आपने जो भी पढ़ा है बेसिक आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहने दीजिए, कोई प्रेशर मत लीजिए। स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा मियोसिस क्या है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम पूरा आउटलाइन देखेंगे। मियोसिस प्रोसेस जो हो रही है उसमें हम पूरा का पूरा आउटलाइन देखेंगे, मियोसिस 1 भी और मियोसिस 2 भी, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इस पेज में बस आउटलाइन है। इंटरफेज सबसे पहला फेज, ये एक प्रिपेरेटरी फेज की तरह माना जाता है, जब सेल तैयारी करेगी कि मुझे डिवीजन में जाना है। कैरियोकाइनेसिस, ओके, सो कैरियोकाइनेसिस मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कैरियोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन होता है। ओके, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बिकॉज द वर्ड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, the word carrion means nucleus and the word kinesis means division. Similarly, if somebody asks you what is cytokinesis, you have to say cyto means cytoplasm or cell and kinesis means division. Okay, ऐसे बोलना है।
बहुत इजी है, जब हम वर्ड्स को स्प्लिट कर लेते हैं तो हमें डिफिकल्ट नहीं होता कुछ। ओके, चलिए फर्दर हम लोग ये थोड़ा जल्दी देख लेंगे क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बस एक आउटलाइन है कि पूरा मियोसिस होता कैसे। सो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन की जो प्रोसेस है उसमें शुरू हो गया प्रोफेज 1। ये शुरू हो रहा है मियोसिस 1, मियोसिस का पार्ट 1। ओके, यहाँ से वहां से शुरू हुआ पहला प्रोफेज 1। उसके अंडर के सब स्टेजेस हैं, ये प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस हैं। लेप्टोटीन हम कहते हैं इसे, जाइगोटीन कहते हैं हम, पैकिटीन कहते हैं, डिप्लोटीन कहते हैं, डाइकाइनेसिस कहते हैं। ये 5 सब स्टेजेस हैं जो प्रोफेज यहाँ पे खत्म होता है। ओके, प्रोफेज जो स्टेप है यहाँ पे एंड होता है। ये सारे स्टेप्स प्रोफेज में आते हैं, प्रोफेज के अंदर आते हैं। अब मुझे आप सोचिए, अपने दिमाग में एक बार आइडिया लगाइए। प्रोफेज हो गया, अब कौन सा फेज आना चाहिए? ऑब्वियसली मेटाफेज आना चाहिए। कौन सा मेटाफेज? 1, क्योंकि ये मियोसिस 1 का पार्ट चल रहा है। इट्स इजी। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 आएगा, टीलोफेज 1 आएगा, साइटोकाइनेसिस, पहला मियोसिस स्टेप यहाँ खत्म होता है। Meiosis ends here. After first phase of meiosis, there will come the second phase. So from here we can say meiosis 2 begins. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, cytokinesis. देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जिस तरह से मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 को इतने सारे सब स्टेजेस थे, यहाँ प्रोफेज 2 को कोई सब स्टेजेस नहीं है। दैट्स द इजी पार्ट। सेकेंड पार्ट को आपको माइटोसिस के जैसे ही याद रखना है, सेम एज माइटोसिस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बस हमें नंबरिंग करना नहीं भूलना है, 2। ओके, लेट्स बिगिन इन डिटेल। चलिए समझते हैं हर एक फेज में क्या क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके, अच्छा, this is interphase. So I told you interphase is the first phase, preparatory phase. Yes, it is given, preparatory phase. It involves duplication of DNA. Duplication of DNA means DNA doubling होगी, क्योंकि further daughter cells में देनी है ना, इसके लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं अभी ये पहला स्लाइड है सेल डायग्राम के साथ, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कौन से लेबलिंग क्या है। तो दिस इज द आउटर वन, you already know. So this is plasma membrane of a cell. We are talking about animal cell, so इसलिए cell wall नहीं है, यहाँ पे membrane है। Then this one, this membrane is nuclear envelope, nucleus है ये, अंदर उसके है न्यूक्लियोलस। देन ये आपको जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो भी अंदर दिख रहे हैं इस तरह से फैले हुए, वो है क्रोमैटिन और सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स यहाँ पे आपको रेडिएट करते हुए दिख रहे हैं। ये टर्म्स आपको अभी समझ नहीं आएंगे अगर आप डायरेक्टली मियोसिस के लेक्चर सेशन में घुसे हो तो। आप प्लीज जाइए बैक, माइटोसिस के लेक्चर्स हैं मेरे चैनल में, वो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्रोमैटिन क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है। ओके, आपने बहुत सारे टर्म्स सुने हैं, आपको किसी ने शायद एक्सप्लेन किया हो या ना हो, आई डोंट नो। देयर आर मेनी टर्म्स लाइक क्रोमैटिन, that is already given in the diagram. Then there are chromosomes, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा या फिर डेफिनेशन रट लिया होगा। क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, देन क्रोमैटिड भी ऐसा एक टर्म आता है। तो ये सब क्या है, मैंने माइटोसिस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। These are very very important terminologies. Okay, okay, let's move to the next topic, next part. So interphase के बाद आप चलिए गेस करिए कौन सा फेज आएगा। सो अब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होने के लिए प्रोफेज 1 शुरू होना चाहिए। ओके, स्टार्ट हो गया प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 में आप देखिए डायग्राम में किस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज हैं। ठीक है, क्रोमोसोम किस तरह से अरेंज है आप देख सकते हैं डायग्राम में।
दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज बोला गया है, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज है ये। एंड इट कंसिस्ट ऑफ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। थोड़ी देर पहले हम देख कर आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेप्टोटीन में आ गए हम, पहला फेज। लेप्टोटीन में आपको ध्यान क्या रखना है मैं बताती हूँ। लेप्टोस वर्ड का मीनिंग एंड टीनी। लेप्टोटीन को अगर हम डिवाइड करें तो दो टर्म में डिवाइड करते हैं हम, लेप्टोस एंड टीनी। ओके, सो लेप्टोस मतलब होता है थिन, टीनी मतलब होता है थ्रेड। किसके बारे में कहा जा रहा है? क्रोमोसोम्स के बारे में कहा जा रहा है। क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं, थोड़े से लॉन्ग दिख रहे हैं, एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए थ्रेड के साथ कंपेयर किया गया है। तो एज द नेम, व्हेन यू सी द सब स्टेजेस नेम दैट इज लेप्टोस एंड टीनी, इट विल बी इजी फॉर यू, है ना, हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। नाम पे याद रखना है, थिन थ्रेड। ओके, अब आया नेक्स्ट स्टेज दैट इज जाइगोटीन। अब इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। जाइगोटीन का मीनिंग है, जाइगोस मीन्स पेयर, टीनी मीन्स थ्रेड अगेन। तो टीनी का मतलब तो थ्रेड है, ये आप फिक्स रखिए। जाइगो मीन्स पेयर, लेप्टोस मतलब क्या था? थिन। यहाँ थ्रेड्स जो है वो पेयर होने लगे हैं, मीन्स क्रोमोसोम पेयर होने लगे हैं। तो क्रोमोसोम पेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी डिवीजन शुरू हो पाएगी। अब यहाँ देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर लेंथ वाइज। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर और ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या? आपने डेफिनेशन तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको याद नहीं है। अगर आपको कोई पूछ ली व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, you may not be able to answer that person. So homologous chromosome means they are structurally, they look alike, structurally they are same, morphologically and structurally they look alike, एक जैसे ही दिखते हैं। but the most important thing is एक पैटर्नल की तरफ से, मीन्स एक फादर के साइड से आया हुआ क्रोमोसोम और एक मैटरनल साइड से आया हुआ क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। Paternal chromosome and one another is maternal chromosome. We call that as homologous chromosome. Synapsis अब एक नया टर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। सिनेप्सिस मतलब जब क्रोमोसोम इस तरह से पेयर हो जाए, जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह से क्रोमोसोम पेयर हो जाए, इसे हम कहेंगे सिनेप्सिस। ओके, मैं आपके लिए डायग्राम थोड़ा क्लियर करती हूँ। ओके, सो इसे हम कहेंगे सिनेप्सिस। और इस तरह से पेयरिंग वाले क्रोमोसोम्स को हम एक साथ कहेंगे बाइवैलेंट, ठीक है। एक्चुअली ये इस तरह से क्रोमोसोम है, तो इस सिंगल यूनिट को हम क्रोमैटिड कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये सिंगल यूनिट है क्रोमैटिड, ये सिंगल यूनिट है क्रोमैटिड, ये एक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमैटिड है। तो इसे हम कहते हैं, इस तरह से इनका पेयरिंग होने को हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्रोमोसोम का बन जाना उसे हम कहेंगे सिनेप्सिस। और बाइवैलेंट, बाइवैलेंट क्यों? क्योंकि दो क्रोमैटिड आपस में एक साथ आके जुड़ गए। ये एक क्रोमैटिड था, ये एक क्रोमैटिड था, जब ये आपस में आके जुड़ जाएंगे तो वो बनाएंगे बाइवैलेंट, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस है, हमें डायग्राम में जो दिख रहा है वो टेट्रावैलेंट है। आई होप दैट इज क्लियर। क्यों टेट्रावैलेंट है? क्योंकि हमारे डायग्राम में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो ये चार स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टेट्रावैलेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज पैकेटिन। नाउ आई टेल यू स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो हो रहा है पैकेटिन के लिए ही हो रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। थिक थ्रेड फॉर्मेशन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ होती है, पैकेटिन ऐसा फेज है उसके वर्ड स्प्लिट से उसके अंदर की बात पता नहीं चलती। वर्ड स्प्लिट से मतलब पैकस मीन्स थिक,
टीनी मीन्स थ्रेड। इस बात से इसके अंदर क्या हो रहा है प्रोसेस में वो पता नहीं चलेगा आपको, इसके लिए हमें प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। लास्ट स्टेज से हम देखकर आ गए कि यहाँ पेयरिंग हो रही है, जाइगोटिनी में पेयरिंग हो रही थी, ठीक है, हो गई पेयरिंग। अब यहाँ इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगी। जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स एक दूसरे आपस में आए थे, दोनों पेरेंट्स के साइड से जो होमोलोगस क्रोमोसोम आए थे, वो अब एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक क्रॉस ओवर है, यहाँ पर एक है, देयर इज अ क्रॉस ओवर, there are many crossovers, 1 2 3 4 5 6 7 crossovers are there in the diagram, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ओवरलैप करते हैं। पर आपने एक चीज नोटिस की है, ऑरेंज वाला जो क्रोमोसोम है वो ब्लू वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, ब्लू और ऑरेंज आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ऑरेंज ऑरेंज के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, ब्लू ब्लू के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिट पेरेंट्स के ना, मैटरनल से एक आया एंड पैटर्नल से एक, फादर साइड से एक, मदर साइड से एक, आपस में ओवरलैप करेंगे तो रिजल्ट कुछ खास नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? यहाँ शफलिंग ऑफ जीन्स हो रहा है, शफलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मियोसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ होता है शफलिंग, ठीक है। शफलिंग ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम के लिए मियोसिस हो रहा है। तो यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब ऑरेंज वाले दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। ऑरेंज वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स है 1 and 2, देन ब्लू वाले 3 and 4, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। 1 and 3 आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। 2 and 3 are non-sister chromatids. 2 and 4 are non-sister chromatids. 4 and 1 are non-sister chromatids. ब्लू ब्लू दोनों आपको जो क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ऑपोजिट वालों के साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो कौन किसके ऊपर ओवरलैप करेगा? ब्लू वाला ऑरेंज के साथ ओवरलैप करेगा क्योंकि वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, so when the overlapping, they are overlapping, there is exchange of genetic material take place। हम देखेंगे आगे कहाँ पे हुआ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, कहाँ हुआ, उस टर्म को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल या जीन्स का एक्सचेंज होता है दोनों क्रोमोसोम्स में, उसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे हो पाता है पॉसिबल? क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ओके। तो जो पॉइंट्स है जहां वो ओवरलैप करते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं काइज़माटा। द पॉइंट्स ऑन विच द क्रोमोसोम्स ओवरलैप कॉल्ड एज काइज़माटा। See, you can see here in the diagram. Let's move to the next slide. So I told you pachytene is very important step. Next. So in this diagram, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से क्रोमोसोम, मैं आपको यहाँ लिख कर बता देती हूँ कैसे क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, ओके। दिस इज क्रोमैटिड नंबर 1, क्रोमैटिड नंबर 2, 3 and this is 4, okay। As I told you, 1 and 3 are non-sister chromatids, 2 and 3 are non-sister chromatids, 2 and 4 are non-sister chromatids, 1 and 4 are non-sister chromatids। So red और red sister chromatids हैं, blue और blue sister chromatids हैं, but red और blue non-sister chromatids हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, non-sister chromatids ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जीन्स एक्सचेंज हो गया, है ना। रेड वाला पैच ब्लू के पास आया, ब्लू का पैच रेड के पास गया, मतलब जीन्स एक्सचेंज हुआ। ये हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम था, ये मैटरनल क्रोमोसोम था।
पर मैटरनल में अब थोड़ा सा पैटर्नल जीन्स आ चुका है, पैटर्नल में थोड़ा सा मैटरनल जीन्स आ चुका है। इसी जीन्स को फर्दर ये नेक्स्ट जनरेशन गैमेट फॉर्मेशन के लिए भेजते हैं और वही गैमेट इंडिविजुअल बनाता है फ्यूजन होने के बाद। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आगे जाएगा, बहुत लेंदी होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कभी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी आपके रिक्वेस्ट पर। ओके, नेक्स्ट डिप्लोटीन। नाउ डिप्लोटीन, द वर्ड डिप्लॉस मीन्स टू थ्रेड। यहाँ अब डिप्लोटीन में क्या होता है, सेपरेशन की तैयारी। ओके, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुके थे, अब उनको सेपरेट करना है। ओके, और यहाँ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगते हैं क्योंकि अब ये सेपरेट होंगे, फिर डिवीजन प्रोसेस और ज़्यादा डीप में आगे बढ़ेगा। इसके लिए वहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि डिवीजन के लिए स्पेस मिले। ठीक है, और कुछ नहीं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाया जाता है। नेक्स्ट डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में भी धीरे धीरे सेपरेशन हो ही रहा है, किसका, दोनों क्रोमोसोम्स का। ठीक है, फिर भी एंड साइड में कहीं पे थोड़ा सा हमें मिल सकता है काइज़माटा। आप, आई होप आपको याद होगा, काइज़माटा मीन्स द पॉइंट जहां क्रोमोसोम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और वो एंड की तरफ आ रहे हैं ना। पहले तो वो बिल्कुल ही इंटरमिंगल्ड थे आपस में, बिल्कुल ही हम कह सकते हैं ओवरलैप थे। अब वो टर्मिनलाइजेशन मीन्स टर्म, इस तरह से एंड पोजीशन पे आ गए, जो उनका अटैचमेंट है, इसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। काइज़माटा शिफ्टेड टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। मतलब अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है काइज़माटा, क्रोमोसोम्स अब अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर अपीयर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स दिखने लगेंगे, आपको यहाँ दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, ये सेंट्रियोल्स हैं जो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है। सो डाइकाइनेसिस में यहाँ तक प्रोफेज 1 खत्म हो गया, प्रोफेज 1 यहाँ खत्म होता है। अब हमारा मेटाफेज 1 स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। मेटाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करती है, मतलब सेल के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएंगी, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाफेज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सो एनाफेज, यहाँ क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेंगे। देखिए क्रोमोसोम्स किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनकी मदद से किस तरह से क्रोमोसोम्स दूर दूर चले गए। अब आप देख सकते हैं ऑपोजिट पोल्स में चले गए सेल के। Homologous chromosomes start moving towards the opposite pole. Chromosomes which are still attached as chiasmata finally get separated. This is called disjunction. तो क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि सेल में सारी चीजें एक साथ सिस्टमेटिकली एक साथ चलेंगी। तो मेजॉरिटीली क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, एनाफेज में जा चुके हैं, है ना। पर कुछ कुछ क्रोमोसोम पीछे रह जाते हैं, लैग कर जाते हैं, वो अभी भी अपने काइज़माटा पॉइंट्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, और काइज़माटा अलग होने के प्रोसेस को डिसजंक्शन कहा जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने वाले नहीं हो सकते, है ना। किसी किसी को चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आ सकती है, किसी को एक बार में समझ आती है, किसी को 3 बार में, किसी को कभी भी समझ नहीं आती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कितने बार भी पढ़े वो भूल जाते। तो उसी तरह यहाँ क्रोमोसोम्स का है, कुछ क्रोमोसोम फटाक से उन्होंने क्या किया, सेपरेशन किया, डिसजंक्शन किया और वो एनाफेज की तरफ मूव करने लगे। कुछ क्रोमोसोम एनाफेज की तरफ मूव करते करते सेपरेट हो रहे हैं। तो ये सिनेरियो हो सकता है। ओके, इसलिए बोला गया है chromosomes which are still attached as chiasmata finally separated and there this is called disjunction. चलिए आगे देखते हैं। टीलोफेज। अब यहाँ सेल को डिवाइड करने की बात आएगी। एनाफेज में तो क्रोमोसोम सेपरेट होने लगा था, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया, बनने लगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अब नहीं दिख रहे क्योंकि सेपरेशन कर दिया क्रोमोसोम का।
ओके, सेल फरो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, देखिए सेल फरो डेवलप हो रहा है क्योंकि अब सेल डिवीजन हो रही है। अब इस सेल की डिवीजन होनी है, 2 डॉटर सेल्स बनना है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटो एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक division. So plasma membrane constricts in the middle of animal cell while in a plant cell, while a cell plate is formed in a plant cell. So just remember, please remember, this is very very important. Animal cell में constrictions या furrow formation होता है, से हम furrow कहते हैं animal cells में. Plant cell में cell plate formation होता है. Okay, and cell to form 2 daughter cells, each daughter cell with single nucleus consisting of single set of chromosome. So here we can see single set of chromosome in the daughter cells. Let's move to the second part of meiosis. यहाँ हमने खत्म कर दिया पहला meiosis part. Second part of meiosis is very easy. अभी इसी सेल को हमें 4 सेल में बनाना है. तो आपको मैं अगर कहूँ बिना दिखाए भी, तो आप ड्रॉ कर लोगे अपने नोटबुक में डायग्राम्स ड्रॉ कर लोगे कि क्या होगा इमेजिनेशन में. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. चलिए देखते हैं. सो हियर स्टार्ट्स meiosis 2, दैट इज फॉर स्टार्ट्स विथ प्रोफेज 2. पर यहाँ पे कोई सब डिविजन्स नहीं है. प्रोफेज 2 बेचारा सीधा सीधा अकेला है. ओके, डायरेक्टली मेटाफेज 2 में जाना है. सो यहाँ वो कोई सब डिविजन्स नहीं रखता, लेप्टोटीन जाइगोटीन जैसे meiosis 1 में था, वो हो गया. ओके, सो हमारे पास 2 इस तरह से रेडीमेड सेल्स आ गए. कहाँ से? meiosis 1 से. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? meiosis 2 स्टार्ट कर चुके हैं. ओके, फिर से वही होगा जैसे पहले प्रोफेज में हुआ था कि क्रोमोसोम शॉर्ट हुए, थिक हुए, रेडी हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अब फिर से डिसअपियर हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स रीअपियर होने लगे हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से डिवाइड करना है. जब जब डिवाइड करना है तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस को वहां से हटाना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी डिवीजन के लिए. नेक्स्ट देखते हैं मेटाफेज 2. सो मेटाफेज 2 में हमें पता है क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेन में अलाइन हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से. सो आप देख सकते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, chromosome moves towards the equatorial plane, chromosome gets connected to the respective poles by spindle fibers. Yes, let's see the next step. Please guess the next step. So we can easily guess now. The next step has to be anaphase 2. Yes, तो यहाँ पे आप देखिए anaphase 2 में क्या हो रहा है. देखिए धीरे धीरे सेल डिवीजन होता हुआ दिखा रहा है, थोड़ा एलोंगेट हो गया है सेल, है ना. और क्रोमोसोम्स किस तरह से स्पिंडल फाइबर्स की मदद से सेपरेट हो रहे हैं आप देखिए, है ना. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है. सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स, chromatids are separated. Students please follow, this is very important. So अब क्रोमोसोम्स थोड़ी देर पहले कैसे थे? ऐसे. ये वाला जो पॉइंट था रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, ये है सेंट्रोमियर. इन्होंने कहा है centromere of each chromosome divides and chromatids are separated. I told you, this is third time in this lecture session I am telling you that 1 and 2, these are chromatids. This whole is a chromosome. So from the centromere they are attached. When you separate both the chromatids apart, I am saying chromatids apart, अगर आप chromatids को दूर दूर खींचोगे तो बीच से इसको टूटना पड़ेगा. यही हुआ है आपके डायग्राम में. ठीक है, यहाँ पे यही हुआ है. सेंट्रोमियर पोजीशन से वो टूट गए, अलग हो गए, आई मीन सेपरेट हो गए. Each chromosome is now called daughter chromosome. Yes, between centromeres of daughter chromosomes, interchromosomal fibers are found. So between centromeres of daughter chromosomes, interchromosomal fibers are found. Means these are interchromosomes. These are interchromosomes. इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स, सॉरी. सो स्पिंडल फाइबर्स को ही हम क्रोमोसोमल फाइबर्स बोलते हैं. जो 2 क्रोमोसोम के बीच में आ जाए उन्हें हम इंटरक्रोमोसोमल बोलते हैं. ये देखो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में आ गए ना, इसलिए इंटरक्रोमोसोमल फाइबर्स बोलते हैं. ओके,
नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, टीलोफेज। अब यहाँ तो डिवीजन की पूरी तैयारी हो जाएगी, ये तो लास्ट स्टेप है मियोसिस 2 का। सो यहाँ डिवीजन की पूरी तैयारी है। आपको याद है, ऑब्वियसली आप जानते हैं, एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है ना। सो डॉटर क्रोमोसोम्स आर गैदर्ड एट ईच पोल स्टार्ट्स ऑन कॉइलिंग। ये अब धीरे धीरे क्रोमोसोम खुलने लगेंगे, क्रोमैटिन थ्रेड का रूप लेने लगेंगे, इस तरह से ये खुलने लगेंगे। ओके, तो ये इसलिए इन्होंने बोला है अनकॉइलिंग होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। देखिए डिवीजन के लिए स्पेस बनाने के लिए चले गए थे पर फिर से आ गए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलोफेज। लेट्स सी द लास्ट फेज। द लास्ट मीन्स क्या होगा, ऑब्वियसली साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2 मीन्स मियोसिस 2 का साइटोकाइनेसिस। तो ये है साइटोकाइनेसिस, जहां पे आप अब हैप्पीली 4 डॉटर सेल्स देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ हेंस प्रूव्ड meiosis produces 4 daughter cells. Okay, so yeah, telophase has phase 2 is telophase 2 is followed by division of cytoplasm of each cell forming 2 daughter cells. At the end of meiosis 2, 4 haploid daughter cells are formed. Yeah. So this is just an overview. Whatever we have learned till now, अभी तक हमने जो जो देखे हैं उसका ओवरव्यू है। इस तरह से सेल आया, क्रोमोसोम की डबलिंग हुई, फिर हमने मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के बाद देखा, हमें 2 डॉटर सेल्स मिले। मियोसिस डिवीजन 2 के बाद हमने देखा, हमें 4 डॉटर सेल्स मिले, है ना। इस तरह से हुआ। सो ये जैसे एक ओवरव्यू है पूरे प्रोसेस का आपके समझने के लिए। ये डायग्राम्स हैं, जिनको कुछ स्टूडेंट्स को डायग्राम्स टेक्स्ट बुक के इजी नहीं लगते या कहीं मिलते नहीं हैं डायग्राम्स, तो आप प्लीज़ इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो इस डायग्राम में है। ओके, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई टर्म ऐसा रह गया, आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए ये मेरा ईमेल आईडी है, exitocoachinginstitute@gmail.com is my email ID. Okay, and this is the link for Telegram, for joining the Telegram group, and this is the website link. So it will be good. इन तीनों में से आप किसी से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, और आपने आइडियाज़ या फिर आपने एक्सपीरियंसेस अपने जो हैं आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल बी कमिंग विद न्यू वीडियोज़ on different topics in science. Okay, thank you so much. Bye.